So hello everyone, welcome to EduTap. So guys, in today's video, we will be basically elaborating you about the topics that you need to prepare when you are preparing for the RBI Grade B Phase 1 examination. Because generally when you look at the RBI notification, except ESI and finance, there is no definition of what are the topics you need to prepare when you are preparing for this examination. So guys, stay tuned for the video. आपको सारी information आज की वीडियो में मिल जाएगी. But before that guys, I just wanted to give you a glimpse of this very comprehensive guidebook that we have prepared for you. ठीक है, generally when you start preparing for the examination, common things क्या आती हैं? You need to know about the organization, what will be your salary structure, what are the hierarchical things that you will get in the organization. Along with that guys, the second important thing जिसमें बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितने फेसेस में एग्जाम होने वाला है, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, what are the different sources you need to follow when you are preparing for the examination. All the things have been defined here, and not just if I talk about cutoff सिर्फ आपको phase 1 की नहीं, along with phase 1 the cutoffs of phase 2 has also been mentioned from the past 5 years. अब phase 1 phase 2 के बाद next thing आती है interview, that what is the guidance you need for an interview, that has also been mentioned in this book. And along with that guys, a 6-step domination strategy has also been defined here, which will basically give you an idea किस तरह इस एग्जाम को डोमिनेट कर सकते हो. The most important thing is आपका टाइम भी बचेगा, because you keep on searching on lot of videos और आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती. And the important thing is guys, it is absolutely free. आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है. There is a link given in the description below of this video. Download this guidebook and tell us about your feedback. Now guys, talking about the most important thing, that is general awareness, because around 40% of your examination is from general awareness. So if when we have analyzed the general awareness section, the basic thing is GA आपका basically divide होता है guys in these 3 sections, that is banking and finance current affairs, ठीक है, ESI and general awareness. Because बैंक फाइनेंस का सिलेबस आपका डिफाइंड है, ESI का सिलेबस डिफाइंड है, बट द प्रॉब्लम कम्स व्हेन यू टॉक अबाउट जनरल अवेयरनेस में क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है. सो लेट्स गो वन बाय वन. द फर्स्ट थिंग, इफ आई टॉक अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम द पास्ट ईयर. इफ आई टॉक अबाउट GA में 23 क्वेश्चंस आए थे, ESI में 28, बैंक एंड फाइनेंस में 13 और ARD में आए थे आपके 2 क्वेश्चंस. ARD इफ आई टॉक अबाउट गाइस, वी कैन इंक्लूड इट अंडर ESI आल्सो, बिकॉज ESI में ही आपका टॉपिक डिफाइंड है, दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द banking and finance current affairs. So guys, banking and finance current affairs, when you are preparing, note down these topics, because these are the topics which are directly related to banking and finance. जैसे कि RBI notifications और press release, banking reforms और committees, बैंक मर्जर्स और पार्टनरशिप्स, बैंकिंग कमेटीज, और सबसे इंपॉर्टेंट है जनरल फाइनेंस दैट इज रिलेटेड टू योर सिलेबस. और यहां पे आपका डिफाइंड सिलेबस हैज बीन गिवन इन योर आरबीआई नोटिफिकेशन दैट यू नीड टू फॉलो. और इसको किस स्ट्रक्चर में पढ़ना है, दिस इज द थिंग. अगर आप आरबीआई नोटिफिकेशन स्टार्ट करो तो यू हैव टू गिव प्रायोरिटी टू आरबीआई नोटिफिकेशंस, देन यू कैन रीड अबाउट सम बैंकिंग रिफॉर्म्स और कमेटीज, ठीक है जी. मर्जर्स और पार्टनरशिप्स ये आपको लास्ट 3 मंथ्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड अलॉन्ग विद दैट फाइनेंस करंट अफेयर्स जो कि सिलेबस से रिलेटेड है. जैसे if I give you an example, there is a question on section 8 of Companies Act which can be defined from our syllabus of primary and secondary market. Now coming to the second thing, that is ESI current affairs. अब यहाँ पे बहुत ही important topic है, that is government schemes, because government schemes are not just relevant for phase 1, they are equally relevant for phase 2 examination. But when I talk about phase 1 specially guys, तो ESI में आपके 3 things are really important, that are government schemes, reports, and then there are current affairs which are related to your syllabus. Then also if I talk about syllabus guys, यहाँ पे defined syllabus दिया हुआ है, ठीक है. IMF, World Bank, WTO reports they are releasing. Then social structure in India, कोई इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में कोई डेवलपमेंट हो रही है, या हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज है आपकी, दे शुड बी कवर्ड इन योर ESI करंट अफेयर्स. उसको आप प्रिपेयर कर सकते हो. नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज जनरल अवेयरनेस, जहां पे जनरली द स्टूडेंट्स काइंड ऑफ गेट कंफ्यूज कि वहां पे हमें क्या पढ़ना है. द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज गाइस, based on the previous year paper analysis, we have analyzed that the topics that you are reading, you categorize them in such a way, instead of categorization of national और international news, आप उसको और बेटर तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं कौन सी न्यूज आपको प्रायोरिटी पे पढ़नी है. इफ आई टॉक अबाउट हियर गाइस, सो यू स्टार्ट विद दोज न्यूज. अगर कोई न्यूज फर्स्ट टाइम है तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज मेंशन्ड हियर. फर्स्ट ई न्यूज, एनी इनिशिएटिव सीन इन न्यूज फॉर द फर्स्ट टाइम, उसको आप पढ़िए, दैट इज इंपॉर्टेंट हियर. government initiatives that are seen in news, then there are agreements or partnerships which are there in news. ठीक है, कोई major agreement India sign कर रहा है, that is really important here. Then are summits and conferences. Summits में आपको summit कहाँ पे हो रही है, summit की theme क्या है,
दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू नो. देन आर साइंस एंड टेक न्यूज, डिफेंस न्यूज. डिफेंस एक्सरसाइज में आपको डिफेंस टेक्नोलॉजीज एज वेल एज डिफेंस एक्सरसाइज बोथ यू नीड टू नो. देन कम्स योर एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज. स्पोर्ट्स में कोई भी मेजर इवेंट हो रहा है तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द मेजर अचीवमेंट्स दैट इंडिया हैज मेड देयर, दैट यू नीड टू नो. Along with that, if I talk about our awards and milestones, तो awards आपको काफी आइडिया होना चाहिए, not just the global awards like Nobel Prize or the other awards, but you should also have an understanding about the India specific awards also. ठीक है जी. फिर डेज न्यूज आता है आपका, जिसमें आपको डे और उसकी थीम पता होनी चाहिए, और अदर स्पेसिफिक थिंग इफ दैट इज रिलेटेड टू दैट. बुक्स एंड ऑथर्स, प्लेसेस इन न्यूज, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, अपॉइंटमेंट्स, पर्सन्स इन न्यूज और मिसलेनियस. तो दिस इज अ टाइप ऑफ टॉपिक्स जो आप टॉपिक लिस्ट अपने पास प्रिंट करके रख सकते हैं व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द करंट अफेयर्स. नाउ गाइस, आई विल रिक्वेस्ट वीडी सर हु विल बी एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द क्यूआरई सेक्शन हियर. ओवर टू यू सर. थैंक यू गुरकिरत सर. तो अब बात करेंगे क्यूआरई सेक्शन की. तो क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश आप जानते हैं कि टोटल 120 क्वेश्चन इन तीनों सेक्शन से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. क्वांट के 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 60 क्वेश्चन है और इंग्लिश के भी 30 क्वेश्चन है. ठीक है. तो आपकी जब भी आरबीआई की नोटिफिकेशन आती है तो नोटिफिकेशन में फेज 1 क्यूआरई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं दी होती कि ये तो पता है आपको कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, बट पर्टिकुलर एरिया क्या रहता है, रेंज क्या रहती है कि किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में आपको किन पर्टिकुलर चीज़ों पे फोकस करना चाहिए. तो सबसे पहले बात करें क्वांट के सिलेबस की. तो ये आपका क्वांट का सिलेबस रहता है पूरा. आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं आरबीआई ग्रेड बी के, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं. कोई अगर रेयर चांस हुआ हो तो मैं नहीं बोल सकता, अदरवाइज आपका मोस्टली जो सिलेबस है यही है, यहीं से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं. पिछले 6 सालों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया है. उसका एक मैं आपको यहाँ पे एक टेबल भी दूंगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ आपको फोकस करना है. तो ये आपका क्वांट का सिलेबस है. सबसे पहले बात करें तो ये दोनों चैप्टर एक बेसिक चैप्टर्स हैं. ठीक है. सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम. तो सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम के अंदर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं, बहुत सारी ऐसी होंगी जो इनडायरेक्टली पूछी जाती हैं. तो बेसिक चैप्टर इन पे जरूर फोकस करना चाहिए. आफ्टर दैट नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज, डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, एजेज, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम और प्रोबेबिलिटी. ठीक है. तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस रहता है. पिछले 6 सालों में इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया है. इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता देता हूं. ठीक है. तो इसमें से आपको किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, तो अगर आप यहां तक भी कवर करते हैं, यहां तक सिर्फ इन 6 टॉपिक्स के ऊपर, तो आपके लिए क्वालिफाई करना इस एग्जाम को बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है. आप जानते हैं 2021 2022 का पेपर बड़ा टफ आया है, तो उस टफ के हिसाब से कट ऑफ भी नीचे गई है. तो जो मिनिमम मार्क्स हैं वो सिक्योर करना इन 6 टॉपिक से भी आसान होगा, बट इन पे कमांड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. ठीक है. उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं इन सबको एक कैटेगरी में डालता हूं, तो आप इन पे भी फोकस करिएगा. स्पेशल डीआई, आपको पीवाई को एनालाइज करने के बाद पता चलेगा कि आपको इनमें से किन ज्यादा टॉपिक्स पे फोकस करना है, जो ये वाला एरिया है. बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप स्किप नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे. लेकिन एरिया, वॉल्यूम और प्रोबेबिलिटी अगर मैं आरबीआई ग्रेड भी एग्जाम के हिसाब से देखूं तो ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम संभावना है कि 2 क्वेश्चन ही इनसे पूछे जाएं. मैक्सिमम कभी रेयर ऑफ रेयर 3 पूछे गए होंगे. तो हमें वहां पे जो 30 क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास वक्त होता है, शायद ये उस वक्त के दायरे में नहीं आते, तो इसलिए आप इन्हें स्किप कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जरूर फोकस करिएगा. फिर इस एरिया पे फोकस करिएगा, इसे कभी मत स्किप करिए. यहाँ पे भी आपको जरूर मेहनत करनी है. ठीक है. तो ये मैंने क्यों बोला कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. तो ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस का सेग्रीगेशन है टॉपिक वाइज डिफरेंट ईयर में. आप 2017, 2018, 2019, 2021 और 2022 की बात करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज, रेशियो, डाटा इंटरप्रिटेशन. अब यहां इन 2 टॉपिक से कम क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, फिर भी हमने इनको इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर्स है, इनका अदर चैप्टर्स में यूज होता है. ठीक है. तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है. ठीक है. नाउ कमिंग टू द रीजनिंग सिलेबस. तो रीजनिंग के अंदर भी आपके टॉपिक्स बहुत कम है. ठीक है. और पिछले अगर 6 साल का एनालिसिस में देखूं तो इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं. इसको भी मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है
3 कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद आपको एक पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर अपनी कमांड बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी। तो सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, क्रिटिकल रीजनिंग और डाटा सफिशिएंसी। तो यहां से जो 3 कैटेगरी हमने बनाई है, ये जो टॉपिक है आपके ये फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं और ये जो टॉपिक है आपका ये सेकंड कैटेगरी में आते हैं और ये दोनों टॉपिक आपके थर्ड कैटेगरी में आता है। अगर पेपर मुश्किल आता है और आपको क्वालिफाइंग मार्क्स ही चाहिए इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, अगर तीनों में से कोई भी एक कैटेगरी आपकी अच्छी होगी तो क्वालिफाई करना बहुत बड़ा गेम नहीं होगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि इक्वली यहां से भी 15 to 17 क्वेश्चन आ जाते हैं, दोनों को मिला दें अगर, यहां से तो 30 क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए हैं और आपके 20 से 25 क्वेश्चन इस एरिया से भी रहते हैं। तो फिर आपके लिए अगर तीनों में से एक कैटेगरी में कमांड अच्छी होगी तो फिर क्वालिफाइंग स्कोर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के आधार पे तैयार किया गया सिलेबस है जिस पे आपको फोकस करना है। अब प्रूफ के तौर पे मैं एक टेबल आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। इस टेबल में आप देख पाएंगे कि डिफरेंट ईयर के जो टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चन है ईयर वाइज उनका सेग्रीगेशन है आपके पास, चाहे वो इनपुट आउटपुट टॉपिक है, चाहे वो इनइक्वालिटी है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन सेंस है, सिलोगिज्म है, अरेंजमेंट है, पजल्स हैं, क्रिटिकल रीजनिंग है। अरेंजमेंट और पजल की बात करूं तो अरेंजमेंट बहुत बार आपकी रैंकिंग पे बेस्ड हो सकती है, पजल आपकी ब्लड रिलेशन पे बेस्ड हो सकती है, डायरेक्शन सेंस पे हो सकती है। तो उन चीज़ों को इन्हीं के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करिएगा, तब आप देखेंगे। मैंने क्रिटिकल रीजनिंग को एक अलग कैटेगरी में डाला था क्योंकि यहां से भी मिनिमम 10 क्वेश्चन हर ईयर पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर अगर मैं देखूं तो 5 क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी से भी थे 2022 के अंदर, बाकी सारे इन्हीं टॉपिक से थे। तो यहां से भी आपको एक पूरा एक ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा कि विच टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द सिलेबस फॉर रीजनिंग सेक्शन, और ये सारी चीजें ध्यान में रख के आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। 30 क्वेश्चन आपके यहां से भी रहते हैं। तो जो की एरिया है, ठीक है, अगर पर्टिकुलरली डिवाइड करूं टॉपिक वाइज तो शायद बहुत लेंथी चीजें हो जाएंगी, आपको लगेगा कि इतना से प्रिपेयर करना है। बट जो की एरिया है वहां में आपको 3 चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। सबसे पहला ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, तो बेसिक ग्रामर पर आपकी कमांड होनी अच्छी जरूरी है। आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस से लेकर के नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, मोडाल्स, प्रीपोजिशन, जितना भी ग्रामर वाला पार्ट है उस पे आपको अच्छी आपकी कमांड होनी जरूरी है ताकि आप एरर डिटेक्शन, फिलर्स या ग्रामर पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें आप आराम से सोल्व कर पाए। दूसरा, आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी भी चेक की जाती है फेज 1 एग्जाम के अंदर, क्योंकि एक कॉम्प्रिहेंशन रहता है, एक क्लोज टेस्ट भी रहता है। तो कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी आपकी अच्छी होनी जरूरी है। तो कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी के लिए आप अपनी जो रीडिंग हैबिट है उसको डेवलप करिएगा, लगातार उस पर काम करिएगा। अगर आप इसे एक ताकत बना लेंगे तो ये आपकी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में भी काम आएगा, फेज 1 में भी काम आएगा। तो लगातार न्यूज़पेपर पढ़िएगा, ठीक है, तो उससे आपकी रीडिंग हैबिट हो जाएगी, ठीक है। थर्ड पार्ट होता है वोकैबुलरी वाला। वोकैब पे भी आपकी कमांड होनी जरूरी है और वोकैब भी 2 चीज़ों से ही आप बढ़ा सकते हैं, आपकी रीडिंग हैबिट से या किसी बुक का भी आप सहारा ले सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, वो बुक आप पढ़िएगा जहां से आपकी वोकैब पे कमांड अच्छी हो जाएगी अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो, ठीक है। तो 3 एरियाज है जहां से आपके फेज 1 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही चीज़ें आगे जाकर के डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में भी काम आएंगी, ठीक है। चलिए, उसके बाद अब क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होगा? क्या डायरेक्ट नाउन पे क्वेश्चन होता है, क्या प्रोनाउन पे क्वेश्चन होता है, क्या मोडाल्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन होगा? पूछने का तरीका इस तरीके से रहता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे मैंने कहा कि आपकी अगर जो रीडिंग स्किल अच्छी होगी तो कॉम्प्रिहेंशन और आपका जो क्लोज टेस्ट है उसको आपको सोल्व करने में ज़्यादा इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपकी ग्रामर वोकैब अच्छी होगी, ग्रामर तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है, ठीक है। तो आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन हैं, डबल फिलर वाले क्वेश्चन हैं जो आमतौर पर फेज 1 एग्जाम में पिछले काफी सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन भी आता है, क्लोज टेस्ट भी आता है, डबल फिलर भी आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आता है, ठीक है, और आपका एरर डिटेक्शन भी आता है। तो ये लगातार 7-8 जो टॉपिक है इन्हीं के दायरे पे क्वेश्चन 30 आपके आते रहे। तो उनके लिए तीनों की एरिया पे फोकस करना जरूरी है, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी भी, वोकैब भी और ग्रामर भी। उम्मीद करूंगा कि आप इन चीज़ों से सीख लेकर के आप अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल भी बढ़ाएंगे लगातार न्यूज़पेपर के साथ, ग्रामर पे भी ध्यान देंगे और अपना वोकैब वाला भी पार्ट मजबूत करेंगे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट जो है वो सिलेबस था
QRE प्लस GA का फॉर फेज 1 एग्जाम, जहां पे गुरकीरत सर ने आपके साथ GA के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो सिलेबस है वो शेयर किया, और क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश के अंदर मैंने आपको बताया कि आपको आपका सिलेबस क्या रहता है और किन पर्टिकुलर चीजों पे आपको फोकस करना चाहिए, सो दैट यू कैन इजीली क्वालिफाई फॉर फेज 2 एग्जाम। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, फॉर योर प्रिपरेशन। अच्छे से मेहनत करिएगा, लगातार मेहनत करिएगा, निश्चित रूप से आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।